स्तुति हो। My name is Samson from Chennai. और मेरा नाम सैमसन है और मैं चेन्नई से हूँ। We bring greetings from Joshua, Chennai. और मैं जो जोशमा चेन्नई से आप लोगों को जो है मैं शुभेच्छा लाता हूँ। And also a small assembly there, the village called Pudukuppam, Elim Prayer House. और छोटे से एक गांव में पुदुकुप्पम करके जो है एलिम प्रेयर हाउस में, वहाँ से भी मैं जो है शुभेच्छा लेके आता हूँ। In Chennai, usually we used to give message in Tamil only. हाँ, तो जो हम लोग जो चेन्नई में संदेश जो है सिर्फ तमिल में देते हैं। This is the first time I'm giving message in English. हाँ, तो मैं पहली बार जो है कलीसिया में अंग्रेजी में संदेश दे रहा हूँ। So if I make any grammar mistake, please forgive me. हाँ, तो अगर कोई भी मैं अगर जो ग्रामर है अगर उसमें ऊपर नीचे हुआ तो क्षमा कीजिए। Now we want to worship the Lord. अब हम जो है परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं। For our morning meditation, shall we turn to Psalm 52. और हमारे ध्यान के लिए भजन संहिता उसका 52 चैप्टर, Psalm 52. भजन संहिता उसका 52 चैप्टर, We read the whole verse alternately. और ये पूरे अध्याय को बारी बारी से पढ़ेंगे। Psalm 52 from whole chapter alternatively. भजन संहिता 52 उसका पूरा अध्याय को हम जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। Why goest thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, शान धरे हुए उस तरह के समान वो जल का काम करती है। Thou lovest evil more than good, and lying rather than to speak righteous. Selah. हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। God shall likewise destroy thee forever. He shall take thee away and pluck thee out of thy dwelling place and root thee out of the land of the living. तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और वो कहकर उस पर हंसेंगे। Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in the wickedness. परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हर एक मित्र के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। I will praise thee forever, because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. May the loving living Lord add his blessing to this portion. हमारा स्वर्गीय प्रेमी जीवित परमेश्वर इस वचन बात के ऊपर आशीषित करे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। மாறாத ஜீவனல்லாண்டவரே ரட்சகர் மித்திரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்த்தப்பட்ட உன்னதமான மேல நாமத்திலே இந்த பாதத்திலே தாழ விழுந்து பணிந்து கொண்டு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், வாழ்த்து வணங்குகிறோம். இது நல்லவர், இந்த கிருபை என்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே இந்த நாளிலே ஆராதிக்கும்படியாக ஐயம் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே எங்களை நீர் கொண்டு வந்திருக்காம் ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகத்திலே எங்களை தேடி மீட்டு ரட்சித்து இந்த பிள்ளைகளாக மாற்றி உடைய வீட்டிலே எங்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவரே இந்த சொத்தாக சம்பத்தாக இந்த வெளியேறப்பட்ட பொக்கிஷமாக எங்களை மாற்றி ஆண்டவரே ஆராதிக்க பிள்ளைகளாக எங்களை மாற்றியிருக்காம் ஸ்தோத்திரங்களுக்காகவே. உலகத்தில் அநேகருக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிற விளக்கப்பட்டிருக்கிற ஆண்டவரே ரகசியத்தை எங்களை வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தி ஆண்டவரே இந்த நாளிலே உடைய வீட்டிலே கொண்டு வந்திருக்காம் ஸ்தோத்திர நேரத்தை ஆசிரியத்தால் ஆண்டவரே வந்தவர்கள் வெளிநாட்டின் போகாதபடிக்கு இந்த வார்த்தையால் நிரப்பப்பட்டு சந்திக்கப்பட்டு குத்தப்பட்டு உணர்த்தப்பட்டு ஏவப்பட்டு ஆண்டவரே ஆராதிக்கத்தக்கதாக நீதாம் இருந்து செல்லுமாய் ஜெபிக்கிறோம். இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆராதனை இந்த சமூகத்திலே பிரீதியாக சுகந்த வாசனையாக வந்து எடுத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி சென்றமாய் ஜெபிக்க பெருமையாக்கிறோம். ஆண்டவரே வார்த்தையால் நிரப்பியவர்களும் ஆண்டவரே யாருக்கு பொதுவான கிருபைத்தார் தாழ்த்தி கர்த்தர் வந்ததற்கான ஸ்தோத்திரம். அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், திருமாய் வரை கிருபைத்தார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரம் ஜெபிக்கிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென். Psalms 52, we read the whole chapter. Psalm 52. भजन संहिता 52 को हमने पूरे अध्याय को ध्यान पढ़ा। We'll all read verse 5. 5 वचन को सब मिलके पढ़ेंगे। God shall निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और तुझे पकड़कर
तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। The last portion says, land of the living. जीवितों के लोक करके जो है ये लिखा है। We just want to meditate on the land of living. जीवितों के लोक के बारे में हम थोड़ा ध्यान मनन करने की कोशिश करेंगे। God has kept in the land of living. परमेश्वर ने हमें जीवितों की संख्या में जीवितों के लोक में रखा है। Actually, that verse says, वो वचन इस प्रकार से कहता है, root thee out of the land of the living. और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। Root thee out of the land. तो ये जो है इस लोक से जो है तुझे उखाड़ डालूंगा। According to our faith and sin and disobedience, और अगर हमारे जीवन और हमारे जो पाप और हमारे जो बर्ताव के कारण we should be out of the living land. हम तो जो जीवितों की संख्या से बाहर रहना था, God has kept us in the land of living. लेकिन परमेश्वर ने उसके जो है हमें जीवितों की लोक में रखा है। How? Because of what God has kept us in the land of living. परमेश्वर ने क्यों हमें जीवितों की लोक में रखा है? Three things we are going to see. तीन बातों को हम देखेंगे। Number one, पहला first वचन, it says, "Why boast thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually." पहला वचन में, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। In Tamil it says, "Kirubai," grace. हाँ, और करुणा करके जो है करुणा अनुग्रह। Grace endureth, grace God has given. हाँ, जो अनुग्रह है वो जो परमेश्वर ने दिया है वो जो अनंत है। In the same chapter, वही अध्याय में 8th verse, 8वां वचन, "But I am like a green olive tree in the house of God. I trusted in the mercy of God forever and ever." परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। Also in Tamil it says, "Kirubai ennal mulanga." Grace is ever and ever. तो यहाँ पे भी जो है वो अनुग्रह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा बने रहता है। We see the enduring grace. परमेश्वर का जो सनातन का रहने वाला अनुग्रह, Ever and ever grace. जो हमेशा हमेशा के लिए अनुग्रह, That kept you and me in the land of living. और यही सिर्फ अनुग्रह ही के कारण जो है हम जीवितों की लोक में हैं। The grace represents Lord Jesus Christ. अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह को जो दिखाता है। Because of His grace, we are given salvation and it has been kept in the land of living. और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ही के कारण हमें उद्धार मिला है और जीवितों के लोक में हम हैं। Instead of us to be cut off from the living land, God made His Son to be cut off from the living land. हम जीवितों के लोक से हम उखड़ जाने थे, हमको निकाल देना था, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जो है हमारे लिए जो है उसको जो है मरना पड़ा। Isaiah chapter 53, ऐसे नबी का किताब उसका 53 अध्याय verse 8. 8 वचन। Isaiah chapter 53 verse 8. All together we read. ऐसा नबी का किताब उसका 53 8 सब मिलके पढ़ेंगे। He was taken from prison. अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों ने में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। He was cut off out of the land of living. और वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। He was cut off from the land of living. और वो जो है जीवितों के लोक से वो उठा लिया गया। This is the grace, enduring grace, ever and ever grace we have received. और ये अद्भुत जो सनातन का जो हमेशा हमेशा रहने वाला अनुग्रह हमने पाया है। Also in Jeremiah chapter 11, और उसी तरह से यिर्मयाह का किताब 11 अध्याय verse 19. और 19 वचन। Jeremiah chapter 11, यिर्मयाह का किताब 11 अध्याय verse 19. और 19 वचन। All together please. सब मिलके पढ़ेंगे। But I was like a तो मैं lamb वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियों यह कहकर करते हैं, आओ हम वध समय उस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण ना रहे। Let us cut off from the land of the living. हम जीवितों के लोक से उसे उखाड़ डाले।
See the grace we have received. देखिए हम कैसा अनुग्रह को पाए हैं। According to our sin and disobedience, we should be cut off from the land of living. हमारे पाप के कारण, हमारे अवाज्ञाकारी के कारण हम जीवित के लोक से हमें जो है निकाल दिया जाना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। Because of His enduring grace, ever and ever grace, we have received and we have been kept in the land of living. सिर्फ और सिर्फ उसके जो सनातन के लिए रहने वाला अनुग्रह, हमेशा हमेशा का अनुग्रह जो है, उसके कारण ही हम जीवित के लोक में आज हैं। Job says, अय्यूब कहता है in chapter 28, अय्यूब की किताब उसका 28, Job 28, अय्यूब का किताब 28 verse 13. और 13 वचन। Job 28, 13. अय्यूब 28 और उसका 13 सब मिलके पढ़ेंगे। Man knoweth not the price उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। Man knoweth not and foundeth not. मनुष्य जो है उसको मालूम नहीं है और उसको वो ढूंढ नहीं सकता है। What knoweth not, what foundeth not. क्या मिलता नहीं है और क्या जो उसको मालूम नहीं In the है। above verse it says wisdom. वो ऊपर वचन लिखा है बुद्धि। Wisdom represents Lord Jesus Christ. बुद्धि जो है वो प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता Grace है। represents Lord Jesus Christ. अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखलाता है। The word in the New Testament chapters we read, we were had no wisdom in the world. हम जो है नए नियम में देखते हैं कि हम जो है एक समय में हम जो बुद्धिहीन लोग थे। God came into the world to give us wisdom. प्रभु यीशु मसीह ये जगत संसार में परमेश्वर आया ताकि हमको ज्ञान दे। Knowledge enters into the mind, but wisdom enters into heart. हाँ, तो जो ज्ञान जो है वो बुद्धि जो अपना दिमाग में जाता है, लेकिन जो wisdom enters into heart. हिंदी वर्ड उसके लिए ज्ञान ही है, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में आता है। There's a difference between the knowledge and the wisdom. हाँ, तो ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। See, knowledge is in the mind. हाँ, तो बुद्धि जो है वो दिमाग में है, But wisdom is in the heart. लेकिन ज्ञान जो है वो हृदय में है। There are many verses there. बहुत सारे वचन हैं, Doesn't have time to read. लेकिन हम सब वचनों को पढ़ने So के लिए समय God नहीं है। gave the wisdom through His grace in our heart. परमेश्वर ने उसका ज्ञान हमारे अंदर, हमारे हृदय में दिया, और जो है उसके अनुग्रह के कारण। This is the difference between the worldly people and us. ये फर्क है दुनिया के लोगों में और हमारे में। It's pure of the enduring and ever grace we have received. सनातन के लिए रहने वाला अनुग्रह ही के कारण जो है हमको ये प्राप्त हुआ। See, Psalmist says, भजन करता कहता है, Psalms 116, भजन संहिता verse 9. Psalm 116, 116 उसका 9 वचन verse 9. और 9 वचन All together. सब मिलकर। I will walk मैं before the जीवते रहते Lord हुए in the land of अपने के the यहोवा living. के सामने जाकर नित्य चलता रहूंगा। Because of this enduring and ever grace, I am walking before the Lord in the land of living. और ये सनातन का अनुग्रह जो हमेशा हमेशा के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, उसी के कारण मैं ये जीवित के लोक में मैं चल रहा हूँ। Today, this is our testimony, is it? ये क्या हमारी गवाही नहीं है? Like David says, we walk before the Lord because of His enduring ever grace in the land of living. जिस प्रकार से दाऊद कह सका कि हम परमेश्वर के सामने जीवितों की संख्या में चल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके सनातन की अनुग्रह और करुणा के कारण। Psalm 142, भजन संहिता 142 verse 5. 5 वचन। Psalm 142, verse 5. भजन संहिता 142 और उसका 5 वचन। Because I cried unto हे thee, O यहोवा, Lord. मैंने तेरी I दुहाई said, दी है। Thou art my मैंने कहा refuge. तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। In the land of living, God is our refuge and portion. तो ये जीवितों के लोक में परमेश्वर हमारा भाग है और हमारा जो शरण स्थान है। Instead of cut off from the land of living, God has kept in the land of living by His grace and He is the refuge and portion of our to be in the land of living. जीवन के लोक से हमें उखाड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये उसके सनातन के अनुग्रह के कारण जो है हम जो वो हमारा जो है भाग बना, हमारा दृढ़गढ़ बनकर, शरण स्थान बनकर, वो हमें जो है जीवितों के लोक में हम जीवित हैं। In Ezekiel
एजेकिएल की chapter किताब 32 और उसका 32 अध्याय verse 23. और उसका 23 वचन। Ezekiel chapter 32 एजेकिएल का किताब verse 23. Altogether 32:23। 32:23. एजेकिएल 32 और उसका 23 वचन। Whose days are set. उसकी कब्रें गड़े के कानों में बनी हुई है और उसकी कब्रें के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उठाते हैं अब तलवार से मरे पड़े हैं। In the land of living, our place is in the grave. जीवन के लोक में हमारा जो गम्य स्थान या हमारा स्थान होना था कब्र। But with this grace, we have been not cut off from the land of living. लेकिन उसी के सनातन के अनुग्रह के कारण हम जीवन लोक से उखाड़ दिए नहीं गए। In our sinful nature, we were like a grey person, dead person. हम जो है हमारे पाप के कारण एक मरा हुआ हम व्यक्ति थे। According to we are dead in the trespasses and sins, it says. एफएससी के पत्री में हम जानते हैं कि लिखा गया है कि हम हमारे अपराधों के कारण मरे हुए थे। We should be in the grave. हम तो जो है कब्रिस्तान में होना था। God brought us from the grave and give us because of His grace. उसने हमको कब्र में से निकाल कर जो है जीवन के लोक में रखा सिर्फ अनुग्रह के कारण। Grave we have entered into grace. हम जो है कब्र से हम जो है अनुग्रह में प्रवेश So किए। that we found in the land of living. ताकि हम जीवितों के लोक में हम रह सके। Second, in the land of living. और दूसरा जीवन के लोक में जीवितों के लोक में Psalm 27. भजन संहिता 27। Psalm 27. भजन संहिता उसका 27 चैप्टर Verse 13. और 13 वचन। Psalm 27. भजन संहिता 27 Verse 13. 13 वचन। All together, please. सब मिलके पढ़ेंगे। I have fainted. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं पहुंचाता हो जाता। Goodness of the land, in goodness of the Lord in the land of the living. पर जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई। First, we have received grace in the land of living. हमने जीवितों के लोक में उसका अनुग्रह को पाया। Second, we received goodness in the land of living. दूसरा हम जीवितों की पृथ्वी पर हमने यहोवा की भलाई को पाया है। When we see the history of us behind, how terrible was our nature and status. हम जब हमारे पिछले मुड़कर हमारे पिछले जीवन को देखते हैं तो हमारा जो स्थान और हमारा जो गम्य हमारा जो कितना भयानक था। But today we are filled with the goodness. लेकिन अब आज जो है हम उसके भलाई से हम भरे हुए हैं। We are filled with the goodness. हम जो है उसके भलाई से भरे हुए हैं। Psalm 33. भजन संहिता उसका 33 Verse 5. 5 वचन। Psalm 33. भजन संहिता Verse 5. 33 का 5 Loveth righteousness. वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। Full of His goodness. ये जगत संसार जो है परमेश्वर के भलाई से भरपूर है। We have not followed the goodness. हमने जो भलाई के पीछा नहीं किया, But the goodness followed us. लेकिन भलाई हमारा पीछा किया। We see in Psalm 23. भजन संहिता 23 में ये बात को देखते हैं। Verse 6 we know. 6 वचन हम जानते हैं। Psalm 23 verse 6. भजन संहिता 23 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। Goodness followed us. भलाई हमारे पीछा किया। Full goodness we have received. हमने भलाई का भरपूरी पाया है। Our life is filled with the goodness. हमारी जीवन भरपूर भलाई से भरपूर है। Psalm 107. भजन संहिता 107 Verse 9. और 9 वचन। Psalm 107. भजन संहिता 107 Verse 9. 9 वचन। Altogether, for He satisfies क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूख को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। He filleth the hungry soul with goodness. और वो जो है भूखे को उत्तम पदार्थों से भलाई से भरपूर जो है To be in the land of living, God has filled it with the goodness. ये जीवन के लोक में परमेश्वर ने अपने भलाइयों से भर दिया है। Not only, उतना ही नहीं, see Jeremiah यिर्मयाह का किताब chapter 2 दूसरा अध्याय verse 7. 7 वचन।
यिर्मयाह 2:7 Jeremiah chapter 2 verse 7. यिर्मयाह 2:7 All together please. सब मिलके पढ़ेंगे। And I brought you into the plentiful country. और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया हूँ कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। We read here the fruit of goodness. यहाँ पे हम देखते हैं कि फल और उत्तम उपज जो है उसने दिया। God gave us the fruit of goodness to us. परमेश्वर ने जो है उत्तमता का फल हमें दिया। Once upon a time we ate the fruit which was a great sadness and curse we received. और हमने एक समय में हमने ऐसा फल खाया जिसके कारण हम पर श्राप और हमें जो है पाप में गिर गए। We lost everything. हमने सब कुछ खो दिया। We fellowship with the Lord. परमेश्वर से सहभागिता को खो दिया। Everything we have lost it. सब कुछ हमने खो दिया। But God, with His enduring grace, with His ever and ever grace, He gave the fruit of goodness to us. लेकिन परमेश्वर ने अपने सनातन के अनुग्रह जो हमेशा बने रहने वाला अनुग्रह के द्वारा उसने हमें जो है उत्तम फल उसने जो है हमारे अंदर डाला। This is the goodness we have received in our life. ये सब भलाइयाँ हमने परमेश्वर से पाया है। Also in Jeremiah chapter 31, यिर्मयाह का 31 अध्याय verse 12. और 12 वचन। Jeremiah 31, यिर्मयाह 31 verse 12. और 12 वचन Okay, please. सब मिलके पढ़ेंगे। Thereof thy उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हटने की ओर go together. गोवा के सामने उन्होंने दस्तूर में दस्तूर किया और सब यहूदियों के सामने भी जो पहले के आंगन में बैठे थे नेरिया के पुत्र बाराक को जो महाशय का पोता था छोड़ दिया। Here we read the flow together to the goodness of the Lord. Flow. सॉरी 32 नहीं 31 12। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास ना होंगे। Flowing goodness we read here. वो जो बहता हुआ भलाइयाँ, The overflowing goodness we have received. भरपूरी से उमड़ता हुआ जो भलाई। See, in the land of living, God has blessed us with a great goodness. परमेश्वर ने ये जीवितों के लोक में उसके उत्तम भलाइयों से हमें जो है उसने तृप्त किया। This goodness following goodness. और ये जो भलाई है वो हमारा पीछा करती है। This goodness filled us, filling goodness. और ये भलाई जो है वो हमारे अंदर उमड़ता है, भरता, हमें भरपूरी से भरता है। God doesn't omit any goodness for children. He gives the full goodness. और वो जो परमेश्वर कोई भी भलाई अपने बच्चों से दूर नहीं रखता है, वो भलाइयों से उनको भरता है। He gave the fruit of goodness. उसने जो है उत्तमता का जो है फल दिया। He gave the flowing goodness. और उसने जो है जो बहता हुआ भरपूरी से उमड़ने वाला जो है भलाई दिया। In the land of living, day to day, whatever we want, whatever we need, in time to time, God has given the flowing goodness. हमारे हर एक जीवन की यात्रा में हर दिन हर समय हमारे जरूरतों के अनुसार वो हमें जो है जो भलाइयाँ जो उमड़ता हुआ भलाइयाँ जो है वो हमें देते रहा। In the land of living, God has given the enduring, the ever and ever grace. तो जो है जीवितों के लोक में उसने उसका सनातन से सनातन बने रहने वाला अनुग्रह उसने हमें दिया। The land of living, God has given this goodness. और ये जीवितों के लोक में उसने अपनी भलाई जो है उसने हम उससे भरा। Lastly, thirdly, तीसरा आखिरी Ezekiel chapter 26. एजेकियल का किताब उसका 26 अध्याय। Ezekiel chapter 26. एजेकियल का किताब 26 एजेकियल 26 verse 20. और 20 वचन। Ezekiel 26:20. एजेकियल 26 और उसका 20। Please. मिलकर पढ़ेंगे। तब गड़े में और गिरने वालों के संग में तुझे भी प्राचीन लोगों से मैं उठा दूंगा और गड़े में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोग में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए तारों के समान
कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर ना बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। Glory in the land of the living. Glory. महिमा जीवन के लोक में, Glory in the land of living. जीवन के लोक में महिमा। God has given His glory in the land of living. उसने परमेश्वर ने उसकी महिमा हमें जीवन के लोक में दिया है। In Psalm 84, भजन संहिता Psalm 84 verse 11. Psalm 84 भजन संहिता 84 verse 11. और 11 वचन। Or to this, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and 11 glory. वचन, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। God give grace and glory. परमेश्वर अनुग्रह और महिमा देगा। God has given this glory to us, our truth, to be in the land of living. हमको परमेश्वर ने उसकी अनुग्रह और महिमा दिया है। कितना सौभाग्य की बात है, हम जीवन के लोक में ये प्राप्त किए हैं। This glory we received through the gospel. और ये जो महिमा है हमने सुसमाचार के द्वारा प्राप्त किया है। Because of His gospel of grace, we have received this glory. अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा हमने ये महिमा को प्राप्त किया है। Acts chapter 20 प्रेरितों की किताब 20 अध्याय verse 24. और 24 वचन। Acts chapter 20 प्रेरित 20 verse 24. और 24 वचन। But none of these things move me, neither count I my life. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Gospel of grace. अनुग्रह, जो सुसमाचार का अनुग्रह। Because of this gospel, we have received the glory. और ये जो सुसमाचार के द्वारा हमने महिमा पाया है। Once upon a time, when we see our past history, अगर हम हमारे पिछले अवस्था और हमारे इतिहास को देखेंगे तो in the garden, we were in the fallen glory. हम जो है एदेन के वाटिका में हम जो है महिमा से गिर गए थे। In the Egypt, we were in the famine glory. हम जो है मिस्र देश में हम जो है भूख के जो है महिमा से जो है गिर गए थे। When Lord called Moses to the mountain, it was the fire glory. और जो परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया तब जो है वो अग्नि का महिमा है। Of this all glory, God has given us a fresh glory through His Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जो है नया महिमा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। We received a fresh glory. हमने जो है एक ताजा और एक नया जो है महिमा पाया है। Job says, अय्यूब कहता है, Job chapter 29, अय्यूब का किताब उसका 29 verse 20. 29 और 20। Job 29:20. अय्यूब उसका 29 और 20। Job 29:20 all together please. सब मिलके पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 29। My glory मेरी महिमा was जो fresh in जो me. बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। How come we received the fresh glory? हाँ, ये महिमा जो है आपने जो क्यों कैसे पाया? We were in the fallen glory. हम तो गिर गए, हमारी जो महिमा जो है गिरी We अवस्था were in the थी। famine glory. हम जो है भूख के जो कंगाल के महिमा में हो गए। We not able to enter the fire of the glory. हम जो है अग्नि में हम जो है प्रवेश नहीं कर पाए। But God, through His Son Lord Jesus Christ, yes, given us the fresh glory. लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो है जो का त्यों एक नई महिमा से भर दिया। This fresh glory is found in His salvation. और ये जो ताजा जो महिमा है उसके उद्धार में हमने इसको पाया। Psalms 21, भजन संहिता 21 Psalms 21 verse 5. Psalm 21 verse 5. भजन संहिता 21 और उसका 5। All together, सब His मिलके, glory is तेरे great. उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। His glory is great in thy salvation. परमेश्वर तेरी जो महिमा है, महिमा जो है उद्धार में बड़ा है। What a great glory He has kept in His salvation. कितनी बड़ी महिमा जो है उसने उसके उद्धार में रखा है। We simply say, I being saved.
खाली हम कितने साधारण रीति से कहते हैं हम उद्धार पाया God has करके। given salvation, परमेश्वर ने उद्धार दिया है, but in that salvation He kept the glory. लेकिन उस उद्धार में उसने महिमा रखा है। His glory He kept, fresh glory He kept it. उसके अंदर उसकी महिमा, जो नया महिमा है वो रखा है। That is our hope in glory. और यही हमारी आशा है, महिमा की आशा है। Every believer in the land of living, we have the hope of glory. One day I will have the full glory of Lord Jesus Christ. और एक विश्वासी को जो है वो महिमा की आशा कि जो है एक दिन मैं उसकी पूरी महिमा में भागीदार होऊंगा। Because of His sacrifice on the cross of Calvary, we have received all these benefits. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमने ये सब भलाइयाँ और जो बेनिफिट जो है भलाइयाँ पाई है। What shall we render unto our Lord? क्या हम उसको जो है दे सकते हैं? To fall in His feet and worship. सिर्फ हम उसके जो है उसके पैरों के ऊपर गिरकर उसकी हम आराधना करें। God in the living land, I should be cut off, but you have been cut off from the living land to receive this enduring and ever grace. परमेश्वर, मैं तो ये जीवितों के लोक से उखड़ जाना था, लेकिन मेरे बदले में प्रभु ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जीवितों के लोक से ऊपर उठा दिया ताकि जो है ये सनातन का अनुग्रह मैं पा सकूं। So first in the land of living, God has given this grace. ये जो जीवितों के लोक में परमेश्वर ने ये जो है सनातन का अनुग्रह दिया। Second, God has given goodness in the land of grace. जीवितों के लोक में land of living. जीवितों के लोक में परमेश्वर ने उसका उत्तम भलाई जो है हमें दिया। His goodness is full goodness. उसका जो भलाई है वो भरपूर ही है, भरपूर से है। His goodness is following goodness. और उसका जो भरपूरी है वो हमारे पीछे पीछे आता है। His goodness is filling goodness. और उसका जो भलाई है वो जो है हमें उमड़ने वाला हमारे अंदर से वो जो भलाई है is a fruit of goodness. और उसका भलाई जो है वो उत्तम फल हमें देने के लिए जो है देता है। So in the land of living, God has given this goodness. और ये जीवितों के लोक में उसने इतना भलाई उसने हमारे जीवन में दिया है। Lastly, God has given His glory in the land of living. और जीवितों के लोक में उसने उसकी महिमा हमें दिया है। It's not the fallen glory. गिरी हुई महिमा नहीं, It's not the famine glory. ये वो महिमा नहीं जो हमें अकाल में रख देता है। It's not the fire in the mountain glory. और ये महिमा वो नहीं जो है आग के कारण हम उसमें प्रवेश नहीं कर सके। Fresh glory through Lord Jesus Christ, through His salvation, God has given to us. एक ताजा महिमा जो है वो एक नया महिमा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें प्राप्त होता है। This glory can't be explained. और ये महिमा जो है जो वर्णन के बाहर है, उसको समझा नहीं सकते। Can't be understood. वो हम जो है समझ नहीं पाते हैं। Such a glory God has blessed us. और ऐसे महिमा से परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। So in the land of living, we'll fall into His feet and worship as a church. जीवितों के लोक में हम जो है घुटने पे आकर हम उसकी आराधना करेंगे। May the Lord help us. परमेश्वर सहायता करें।